ही हर शाम तुझसे करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अर्श तो तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अर्श तो तेरा है। ईमान तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, कहाँ पा न सका कोई सागर गुलबत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, कहाँ पा न सका कोई सागर गुलबत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। बेसत दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। गीत सुनाएंगे, गीत सुनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से, और आज जैसे हम इस सभा में भाग लेते हैं, हम यही आशा करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे जीवन में रहेगा, और He will touch your heart. By the end of the service, you will receive something from the Lord. You will
not go empty-handed. Amen. Hallelujah. क्यों नहीं प्रार्थना करें इस समय? Heavenly Father, we just thank you for your loving, your mercy, O God. We just bow before your presence this afternoon, O God. Lord, I pray for your Holy Spirit to minister to your children, O God Almighty, as they're watching, O God Almighty, as they're listening, O God Almighty. Open their hearts, Lord. Open their minds, Lord, that they will understand you better, O God. It is not us, Lord, but it is you, O God Almighty. Your word that goes out, O God Almighty. Father, I pray in Jesus' name. May you be lifted up, O God Almighty. May you be exalted in the lives of your children, O God Almighty. In Jesus' name I pray, O God. Just commit this service into your hands right now. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है. प्रभु हमारा एक इतना
जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। थैंक यू जीसस, तू आया इस दुनिया में हमारे लिए प्रभु। आज धन्यवाद देते प्रभु कि तू महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है प्रभु। Hallelujah Jesus, we worship you God Almighty. Hallelujah, Hallelujah. जैसे जलके लिए हाथी मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है, तू
presence, oh God Almighty. Be in your presence, oh Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. We thank you, God Almighty, for loving us, oh God Almighty, for being there for us, oh God Almighty. Even in these times of trouble, oh God, you are there, oh God. We just worship you, God. Hallelujah.
afresh upon us, oh God. Let your glory fall afresh in Jesus' name. Hallelujah. We worship you, God Almighty. We thank you, Jesus, for loving us. Hallelujah. Because you became the Lamb on that cross. You died for us, Lord. You paid the price. And forever you will be the Lamb upon that cross. Hallelujah. No one can replace you, God Almighty. Hallelujah, Jesus. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Forever he will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship him alone. All heaven declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever he will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship him alone. Forever he will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship him alone. I will proclaim the glory of the risen Lord, who was but slain to reconcile man to God. Forever he will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship him alone. Forever he will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship him alone. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Forever you will be the Lamb upon that throne. For us, Lord. Hallelujah. The blood of that Lamb sets us free from every sickness, every disease, from our sins. Gives us salvation. Hallelujah. And takes us into the presence of God. Hallelujah, Jesus. We thank you. We worship you, Lord Jesus. Father, I pray for each and every person that is out there, Lord, that you touch their hearts, oh God Almighty. Be with them, oh God Almighty. In these times of trouble, Lord, I pray that you will provide all their needs, oh God Almighty. As your word declares, Lord, cast your burdens upon you, oh God Almighty. As we cast our burdens upon you, oh God, and your word says, Lord, that you will take care of it, Lord. And we believe it and we receive it in Jesus' name. Father, I pray, Lord, that you will take care of all their needs, oh Lord. Supply all their needs, oh God Almighty. In Jesus' name, according to your riches in glory by Christ Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Those that are sick there, Lord, I pray, Lord, that you will reach out and touch them, Lord, with your healing hand in Jesus' name. Because by your stripes they are healed, oh God Almighty. Thank you, Father. Oh, we worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से। वो महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ता हम ईस्टर मनाए और इट हैजंट बीन द सेम एज एवरी ईयर हम जैसे मनाते हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इवन इन आवर होम्स that we can worship the Lord, हम लोग परमेश्वर की जय जयकार कर सकते हैं, उसकी धन्यवाद दे सकते हैं। और we spend time with our families, with just intimate time with the Lord, just you and the Lord, amen। तो आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जैसे ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इसमें से परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम उसके साथ में हम कुछ समय बिताए। We spend some time in His presence and be with Him and build our relationship stronger in Him, amen। किसी ने कहा है कि शैतान घूम कर देखता है, परमेश्वर से बातचीत करता है और कहता है कि see, I have created this chaos in the whole world and everybody is the institutions are shut down, the businesses are shut down, even the churches are shut down. And God turned around and He says, yeah, you may have done that, but if you look closely, you will see that people have started church in their homes. They are worshiping me in their homes. जो लोग परमेश्वर से दूर थे, like आधा दुनियादारी में फंसे थे, वो लोग आज प्रभु यीशु मसीह को खोज करते हैं। It says मैथ्यू की किताब में जैसे कहता है 6:33 में, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you, right? जैसे इस दुख तकलीफ में जाते हैं, lot of people have lost their jobs and they don't know what to do। और जो गवर्नमेंट से हमें कुछ जो मिलता है, it's not enough to pay for the food and the bills and stuff like that। लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि हमारा परमेश्वर, जब हम उसकी सेवा करते हैं, बाइबल हमें बताता है कि He will stretch that amount and fulfill the needs or desires of our hearts, and even then out of that we'll be able to bless others, right? ये हुआ है और ये होता रहेगा। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इसमें कि आज जैसे स्क्रिप्चर में हम मिलता है रोमन्स की किताब में चैप्टर 8 वर्स 28 में, and it says, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose, right? हिंदी में जो हम उसको अनुवाद करेंगे तो ऐसा है कुछ कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के जो हम कुछ करते हैं दुख के समय में भी, एनी टाइम when we go through hardship, God transforms it, changes it for His glory and benefits us, right? वो हमें आशीष देता है चाहे कुछ भी हमारे जीवन में आए, and He does that। हम एक खास घटना हम देखते हैं एक व्यक्ति के जीवन में जो बाइबल में मिलता है, जेनेसिस की किताब में चैप्टर 37 में से शुरू होता है, जो मिलता है हमें। ये जोसेफ हम जानते हैं, we all know the story। he was the youngest son and his father made him a coat of many colors, right? उसको एक special coat बनाया था। He didn't make it for all the other sons, but he made it for this youngest son जो उसके करीब था। और there was an intimacy जो ये बाप और बेटा के बीच में था। And जब हम देखते हैं उसके पूरा जीवन में, even when he was away, whatever his father had taught, he knew and he remembered। even जो परमेश्वर के वचन में जो पढ़ा था, वो सीखा था, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। दुख तकलीफ में गया, his brothers even sold him, they were ready to kill him, they sold him to the strangers, he ended up in a strange land। और पोटिफा के घर में वो गया। पोटिफा, he was one of the generals in the army of King Pharaoh, और वहाँ पर इसके घर में काम करता था। and पोटिफा noticed something कि उसके घर में आशीष आता है। जब से ये आया है उसके घर में वो काम करता है, there is blessing in him, right? परमेश्वर के आशीष उसके जोसेफ के जीवन में आया और जोसेफ के जीवन से आशीष वो पोटिफा के घर में आया। लेकिन वहाँ शैतान अपना काम शुरू कर दिया था। जो पोटिफा की स्त्री थी वो जोसेफ को देखा, young man, and she had a desire to have him, right?
और जोसेफ ने देखा कि ऐसा है और ही ran away from there, वहां से भागा, right? अपने आप को बचाया, because he did not want to commit that sin. But उसको अक्यूज किया गया कि ये गलत काम किया है, and पोटिफा बहुत गुस्सा किया, even though he knew जोसेफ ये काम नहीं कर सकेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अपनी स्त्री के बात मानकर और उसको जेल में कर दिया. And he was in a place where all these जो prisoners लोग था, वहाँ पर जो राजा के काम करते थे या कुछ जो गवर्नमेंट के काम करते थे, he was with those people, right? और जो जेला था, जो देखा इसके, और he saw something different in his life, तो उसको ऐसा कर दिया कि जितना कुछ समय बाद उसको he gave him the lead, वहाँ पर look after all the other prisoners, and he was doing a great job. And one day, about 11 years later, he was in jail. 11 years later, परमेश्वर ने उसको वहाँ से निकाल कर राजा के सामने लेकर आया. When the king had a dream and he could not interpret, even उसके जो astrologers लोग थे, उसके जो wise men लोग थे, they were not able to interpret the dream. तो पता चला कि जोसेफ जो है वो कर सकता है, और उसको बुलाया गया और जेल में से जाने से पहले, राजा के सामने जाने के से पहले उसको शेव किया गया, उसको प्रॉब्ली नहलाया गया और अच्छा कपड़ा पहनाया गया, ताकि राजा के सामने जाए तो ही इज मोर प्रेजेंटेबल. तो उसको वहाँ पर लेकर गया, और वहाँ पर जब गया तो राजा ने अपना ड्रीम को बताया, तो उसका ड्रीम का इंटरप्रेट किया, और उसने बताया कि ऐसा ऐसा भूचाल आएगा इस लैंड में, और इट्स गोना बी फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 7 years, राइट? ये ऐसा रहेगा. तो यू हैव 7 years to produce as much as you can and store it for your people. And जो लोग जो 7 years फिर बाद में आएगा, there will be no food. तो जब ये बचा कर रखेगा तो ये इसको तुम यूज कर सकता है उस 7 years में. And he did listen to Joseph, और जोसेफ को क्या किया वहाँ पर, somehow he knew कि ये सच्चा परमेश्वर को सेवा करता है, और शायद इसके जो बातचीत करने का तरीका था, उसके एटीट्यूड वगैरह वो देखकर ये जाना कि ये कुछ डिफरेंट है, पर्सन है, ये और लोगों की तरह नहीं है. और ऐसा हुआ कि उसको उस स्थान पे कर दिया जो राजा का सेकंड में था, राइट? There were other people in the government, और जो राजा के साथ में काम करते थे, they were put down, उन लोगों को अलग कर दिया गया, और जोसेफ को उस जगह पर कर दिया. तो हम देखते हैं जोसेफ अपने पिता के घर में था. he was a loved person, जो अपने पिता के प्यार में पला बड़ा, और उसके भाई लोग, जब वो अपने भाई लोग के लिए खाना वगैरह लेकर जा रहा था, और उसको जब देखा दूर से, और उसको पकड़कर उसमें के कुआं में डाल दिया गया जो ड्राई था. और जब देखा कि जो ट्रेडर्स लोग जा रहे हैं, and they pulled him out from there and they sold him. They sold him for 20 pieces of silver, right? उसको बेच दिया. There was somebody else that sold Jesus for 30 pieces of silver. That was Judas Iscariot. तो हम देखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं और जोसेफ के जीवन में देखते, तेरी सिमिलरिटी बहुत है. जीसस, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के घर में था, लेकिन वो जब हमें देखा है, और जो परमेश्वर ने वादा किया था एडम और ईव को, और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, अपना स्वर्गीय पिता को छोड़कर, जो ऐश और आराम जो स्वर्ग में है वो सब छोड़कर इस दुनिया में आया, और एक इंसान बना, और दुख सहा. कई बार उसको मारने की कोशिश किया, लेकिन कोई उसको छू नहीं सका. जोसेफ को देखते हैं, जोसेफ अपने पिता के घर में पला बड़ा, और उसके पिता का प्रेम इतना था कि उसने एक स्पेशल कोड बनाकर अपने बेटे को दिया, और उसके करीब रहता था. And there was another one, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, जो उसके एक डिसाइपल था जिसका नाम था जॉन.
जॉन भी प्रभु यीशु मसीह के करीब था। और जब हम गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जॉन पढ़ते हैं, रेवलेशन पढ़ते हैं, ये सब हम किताब पढ़ते हैं, ये सिर्फ प्रेम के विषय में हम लिख बताता है, मोर अबाउट द लव ऑफ गॉड, लव के विषय में। और स्क्रिप्चर में कहता है जॉन द डिसाइपल हुम जीसस लव्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये प्रभु यीशु मसीह के करीब था। और जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे था तो उसने अपनी माँ को जॉन के हाथों में सौंपा था। उसने कहा, जॉन, दैट इज योर मदर, एंड मदर, दैट इज योर सन नाउ। एंड जॉन टुक हर, और उसको देखभाल किया। तो आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते जो वचन हमें देता है कि हम लोग चाहे कैसा भी हम लोग दुख समय में रहेगा, प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे लटका हुआ था, लेकिन उसके माँ के जीवन में एक अच्छा चीज आया। ही टर्न थिंग्स अराउंड एंड मेड इट गुड। जॉन के जीवन में अच्छा किया, जोसेफ के जीवन में अच्छा किया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं ही वॉज क्रूसिफाइड। वो अपने आप को उस जगह पर रखा ताकि हमें छुटकारा मिले। एडम और ईव पाप किया, लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, उसने यही वादा किया था कि हमें पाप से छुटकारा मिलेगा। जब हम जॉन की किताब में पढ़ते हैं, जॉन 3:16 में कहता है, For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. अनंत जीवन मिलता हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास करते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें पाप की जिंदगी से छुटकारा दिया है और हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ये भी कहा, I am the way, the truth and the life. No man comes unto the Father without me. कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह एक दरवाजा है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हम और कहीं कोई के द्वारा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम पाप के कारण से हम अलग हो गए थे। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो उस क्रूस पर बहा, वो लहू हमारे पाप को धोकर हमें साफ किया ताकि हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। पहले के जमाना में जो एनिमल सैक्रिफाइसेस होता, उसका लहू जो, उसका खून जो है वो सिर्फ कवर करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का खून हमें धोकर साफ करता है। तो हम कई स्टोरीज हम लोग पढ़ते हैं जो बाइबल में हम लोग के देता है कि हम लोग परमेश्वर के रास्ते पर चले, परमेश्वर के साथ में रहे, राइट? तब हमें हमारा परमेश्वर जो हमें वो मदद करेगा। परमेश्वर ने वादा किया कि वो हमें कभी त्यागेगा नहीं। इस दुखित टाइम में, इस हार्ड टाइम में हम लोग देखते हैं कि लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू सो मच स्ट्रेस, बट हम लोग देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है, जो वादा किया वो पूरा करता है। वो हमारे साथ है, वो हमें आशा दिलाता है, हमें होप देता है, हमें हमारे जीवन में पीस देता है, हमें शांति देता है, ताकि हम इस रास्ते से गुजरेंगे। इसमें कहता है कि आई विल बी विद यू इन ट्रबल एंड आई विल टेक यू आउट ऑफ ट्रबल एंड बी विद यू एंड पुट यू ऑन हाई ग्राउंड्स। मतलब कि हमें वहां से निकालेगा, वो हमारे साथ रहेगा, हमें त्यागेगा, वो नहीं बोलेगा तुम आ जाओ। No, he will be with us and he will take us out of that trouble and put us on a high place. यही उसका वादा है और वो पूरा करेगा। And he said, you will see my salvation. वो हम लोग देखेंगे कि वो हमें कैसे बचाता है, कैसे वो हमें निकालता है। और हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा ही होता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें मदद करते रहता है, हर समय वो हमें मदद करता है। He is there for us. He is there for you and me. He is there for everyone. आपके लिए भी है, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। Amen? Hallelujah, hallelujah. 11 years बाद जब हम जोसेफ को देखते हैं जेल में गया, knowing God, वो परमेश्वर को जानता था और वो शायद सोचता है कि हमारा जो परमेश्वर है क्यों हमें त्याग दिया है। शायद सोचा होगा, आई डोंट नो। बाइबल हम लोग उसके विषय में कुछ नहीं बताता, बट इतना बताता है कि ही फाउंड फेवर इन ऑल द अदर पीपल। जो अथॉरिटी में थे लोग, पॉटिफा के हम देखते हैं, फिर जो जेलर था और लोग जो थे वहां पर, दे सो समथिंग इन जोसेफ दैट वाज डिफरेंट। ये परमेश्वर का प्रेम इसके जीवन में था, एंड द लव ऑफ गॉड was overflowing from him. The blessing of God was overflowing from his life into the lives of other people.
ये हमें बताता है कि हमारे जीवन जो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम उसके सेवा करते हैं, He wants us to be in His presence, और वो चाहता है कि हम हमारे जीवन से भी जो आशीष है वो फैले और लोगों को जीवन में जाए. Amen. Is it happening in your life? क्या ये होता है कि that blessing is coming to you and it's stopping there, or is it flowing out to the other people that are around you? If it is not flowing out of you, there's something wrong. There is something wrong. You are stopping that blessing of God to reach out to others. God wants to bless you so that you can bless others. You become a channel for God to impart the blessing of God. The love of God is imparted through you. You become that vessel that God wants you to be. Amen. Don't stop it. Let it flow. जब हम जोसेफ को देखते हैं, अपने पिता से कितना करीब था, जो रिलेशनशिप उसके साथ में था वही रिलेशनशिप हम देखते हैं उसके परमेश्वर के साथ में था. And he never, probably for once in his lifetime, that he doubted God. वो जानता था कि उसका परमेश्वर उसके साथ में. Even 11 years पास हो गया. कभी कभी हम लोग के जीवन में ऐसा सिचुएशन आ जाता है, इवन फॉर अ फ्यू डेज हम लोग देखते हैं कि दुख तकलीफ में रहते हैं, एंड वी आर क्वेश्चनिंग गॉड, गॉड वेयर आर यू, कहाँ है तू, क्यों नहीं हमें मदद करता है, क्यों तू हमें त्याग दिया है. गॉड हैज नेवर लेफ्ट यू. गॉड इज ऑलवेज विद यू. ही इज देयर फॉर यू. बट गॉड हैज हिज ओन टाइमिंग. गॉड नोज द बेस्ट टाइम फॉर यू. He knows when to bless you and when not to bless you, when to do things for you and when not to do things for you, when to take you out of trouble and when not to. जब हम लोग दुख तकलीफ में जाते हैं वो हमें स्ट्रेंथन करता है. हम लोग, हमारा जो फेथ है परमेश्वर के ऊपर, वो हम लोग के स्ट्रेंथन करता है. हम लोग यही जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है. भरोसा रखे उसके ऊपर. मान लिया जाए आप बस में ट्रेवल करते हैं, तुम्हारा भरोसा जो है उस ड्राइवर के ऊपर है कि वो तुम्हें सेफली तुम्हारा डेस्टिनेशन पर लेकर जाएगा. और कार में ट्रेवल करते हैं, जो ड्राइवर के ऊपर जो भरोसा है. प्लेन में ट्रेवल करते हैं, पायलट के ऊपर भरोसा है कि तुम्हें वो सही जगह पर लेकर जाएगा, एंड इट विल टेक यू सेफली. तो क्यों नहीं हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं? व्हाई नॉट ट्रस्ट गॉड? हाउ कम वी डोंट ट्रस्ट गॉड दैट मच? क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते हैं? Maybe, but that's not the answer. The answer is कि हमारा परमेश्वर वो हमारे दिल में रहता है, वो हमारे साथ रहता है. Jesus said, when I go, I will send the comforter. He will be with you. He will come after I have gone, and he will be with you. वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें मदद करेगा, तुम्हारे आवाज को, तुम्हारे प्रार्थना को सुनेगा, सभी कुछ सुनेगा. ये पवित्र आत्मा, the Spirit of God is going to be with you. जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों के साथ में था, और जब वो उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, वो मर गया था, उसको दफना दिया गया था, उस कब्र में रख दिया गया था. And for those 3 days, the disciples were lost. Basically, they didn't know what to do. Some of them, they said, okay, let's go back to fishing, go back to our trades. And they did go fishing. But what happened? They caught no fishes. But when Jesus came back into their life, when he rose up, when he came back into their lives, then things started happening. When they were fishing, and Jesus said, cast your net on the other side of the boat. हम जानते हैं जो मछली मारते हैं, whether हम लोग राइट साइड हम लोग नेट गिराएगा या तो लेफ्ट साइड, it makes no difference. It makes no difference. But here it was a simple obedience to God's word. It was a simple obedience to the words of Jesus. प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उन लोगों को बताया वैसे ही किया, and they had so much fish. They had so much, but he says, I didn't call you to go and catch fishes in the sea. He said, I called you to go and catch those fishes on the land. मतलब कि लोगों को जाकर बताओ, ये जो खुशखबरी है कि मैंने आया तुम्हारे लिए और ये हम तुम्हारे लिए क्या किया है. I have done so much for you. Now you can enter into the presence of God. You receive this, you accept what I have done for you, and you can enter into the presence of God. यही चाहता है. Joseph
He received God in his life. वो परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया. Even though he went through the valley of the shadow of death, he did not fear. He did not fear. उसके जान की कतरा रहा. उसको कुआं में डाल दिया गया था. लेकिन वो अपना परमेश्वर को पुकारा. And I believe कि उसका परमेश्वर वहाँ से निकाला. शायद उसके भाई जो आकर उनको वहाँ से निकाल कर उनको बेच दिया. पर हम इतना जानते हैं ये परमेश्वर का काम था. ये परमेश्वर ने उसको वहां से लेके आया और वहां से लेकर दूसरा देश लेकर गया जहां पर वो कभी गया नहीं था. एंड ही पुट हिम अमंग्स द पीपल whom he did not know. उस जगह पर रखा और उसको सिखाया कि उसके ऊपर भरोसा रखो. उसको सभी कुछ सिखाया. वहां पर जो चाल चलन है, तरीका है जो काम करने का, सभी कुछ उसको सिखाया. और इन टाइम टू कम उसको उस स्थान पे कर दिया. ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स देयर. जब हम देखते हैं जब फॉर द फर्स्ट 7 years जो था ही वाज इन चार्ज ऑफ ऑल दिस फार्मिंग और व्हाटएवर दे हैड टू डू. जितना अनाज वगैरह था, द फूड दे हैड गैदर्ड, दे स्टोर्ड इट इन बिग बार्न्स एंड स्टफ लाइक दैट. फिर जब 7 years पास हो गया एंड देयर वाज a famine in the whole land. वहां पर कुछ नहीं होता था. Everything was dying, even the animals were dying. लेकिन यहां पर इजिप्ट में इन लोगों के पास वो खाना था. And they were feeding the people, they were feeding the animals, and they were doing good. Why? Because of one person who knew the Lord and he did exactly what God wanted him to do. And the people came to know who the living God was. सिर्फ एक पर्सन के द्वारा. क्या तुम एक वो पर्सन हो? तुम्हारे कम्युनिटी में लोग तुम्हें देखते हैं कि तुम जानते हैं कि तुम मसीह व्यक्ति है, कि वो उसकी सेवा करते हैं, कि तुम और दूसरे लोग की तरह है. Are you just like the others? Let's make changes in our lives. Let's be a unique person, because God made you a unique person. He did not create anybody else just like you. Yeah, you might have some similarities with other people, look-alikes thoda hoga, but there is only one of you, and there is nobody else that is exactly like you. ये परमेश्वर तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है. Amen. हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. आज यही प्रार्थना करते हैं जैसे जोशुआ को परमेश्वर ने बताया दुख के समय में, when you come through all these trials and temptations and all these things, he says, do not look to the right nor to the left, but keep your focus upon me. Keep your focus upon me. And whatever Moses has taught you, bind it on your heart. Meditate upon it. And know that I am with you. Be not afraid. Be not dismayed, because I am with you. Nobody will be able to stand before you. Not even the coronavirus. Nobody will be able to stand before you, because you serve a living God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kine pratna kare is samay. Hallelujah. Heavenly Father, we just thank you, God Almighty, for your love and your mercy, O God Almighty. Father, we thank you, Lord, for what you have done for us, Lord. You came into this world. You paid the price for all of us, O God Almighty. We thank you for this day, O God Almighty, that we can still worship you, O God Almighty, in spite of all this persecution and all those things in different places, in different countries, O God Almighty. But we are still free to worship you, God Almighty. Father, I thank you for each and every one, O God Almighty, that are there, Lord. I pray for a special blessing upon them, O God Almighty, that you be with them, Lord. Comfort them, O God Almighty. Supply all their needs, O God Almighty. Hallelujah, Jesus. Father, I thank you, for you are who you are, O God Almighty. Thank you, Father. Those that are sick, Lord, I pray that you send your word and heal their sickness and diseases, O God Almighty. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.